I want to welcome you all in the name of Jesus. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. And I want to tell you, it's a good news that परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. He loves you a lot. He loves you more than anything. कुछ भी से पहले कोई भी चीज से वो आपसे बहुत प्रेम करता है. That's why John 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया. Most of the time you may think कि परमेश्वर ने मुझे क्या प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझे कितना प्रेम किया. Most of the time we think, जब हम निराश रहते हैं या कोई हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहां पे सिचुएशन हम हमारे फेवर में नहीं रहता, वो हमारा अगेंस्ट रहता है. ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहां पे we think like we are left out. हम सोचते हैं कि हम रिजेक्टेड हैं, and we think कि परमेश्वर तूने हमसे कितना प्रेम किया, how much. And today my dear friend, I want to tell you, look at the cross. उस क्रूस की ओर देखिए. परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया. And his name is Jesus Christ. And he died for you. वो आपके लिए मरा. He died because of love. वो आपके प्रेम के लिए मरा. Because जो हम इंसान जो परमेश्वर से सेपरेट थे, जो हम अलग थे, ताकि यीशु मसीह के मरने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा जो कोई पश्चाताप करे और उस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करे, जो सेपरेशन था परमेश्वर के और आपके बीच में, वो एक संगति बन जाए. Amen. My dear friend, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. He loves you a lot, more than anything. Amen. Hallelujah. Let's turn the Bible. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले. लूका की किताब 16 उसका 19 से 13. लूका की किताब 16 उसके 19 के 13. My dear friends, यहाँ पे if you read the entire chapter, entire story, the story, ये chapter, ये story एक rich man और Lazarus के बारे में बातें करता है. If you read the entire story, the story is all about a rich man and Lazarus. And it says that when the rich man died, और यहाँ पे लिखा गया है, जब अमीर आदमी मरा, he went to Hades, वो अधोलोक में गया. And जब पुअर जो गरीब आदमी था, जो लैजरस था, he went to, वो अब्राहम के गोद में था. और ये कौन बता रहा है? जो शख्स जो हेड्स में था, जो शख्स जो रिच आदमी जो अधोलोक में था, वो इसे कह रहा है. Amen. My dear friend, two things is confirmed. दो चीज confirm है. One is death and one is birth. Two things is confirmed. It doesn't matter who you are. ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन है. It doesn't matter whether you are rich or poor. It doesn't matter you are from middle class or upper family or upper class, or it doesn't matter at all who you are. One thing is confirmed. एक चीज confirm है. It doesn't matter you are from India or you are from Australia, or it doesn't matter you are from any part of this world. One thing is confirmed. One day everyone has to die. एक चीज कंफर्म है कि one day everyone has to die. One day you have to die, one day I have to die. Everyone. This is confirmed. And after that, अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल दो चीज के बारे में बातें करती है. One is heaven and other is hell. अगर आप देखेंगे बाइबल में लिखा गया है, one is heaven and other is hell. It means मरने के बाद कोई भी, anyone, मरने के बाद there is something called heaven and hell. And that is our permanent address. वो हमारा permanent address है. There is no other place. And the best part is like God has given you the choice. परमेश्वर ने आपको एक choice दिया है. It's a free will. परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा. परमेश्वर कभी किसी के साथ, he will never force you. And the best part is like God doesn't want, परमेश्वर नहीं चाहता है कि इंसान hell में जाए. That's why Jesus Christ इस संसार में आया ताकि हम उस सारे चीजों से बच सके. Sorry. Whether you want to go to heaven or hell, this son will be yours. He will never force you. Amen. And if you go back to the Bible, अगर आप बाइबल में वापस जाएंगे,
If you see लूका 16 के अगर वहां पे हम फिर से देखेंगे, it says that when the rich man died, जब वो अमीर आदमी मरा, he was tormented in Hades. He was in Hades. वो अधलोक में गया, अधलोक में उसे सताया जा रहा था. But today I want to ask you that why did the rich man, वो अमीर आदमी वो अधलोक में क्यों गया? Why? Why did the rich man went to Hades? जहां पे उसको टॉर्मेंट किया, वहां पे सताया जा रहा था. Why? Nowhere in the Bible, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है या बाइबल में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है that rich man was caught during adultery, उसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था. Nowhere in the Bible it's mentioned. Nowhere in the Bible it's mentioned that कि वो rich man मर्डर करते हुए पकड़ा गया था. Nowhere. बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि वो अमीर आदमी एक मूर्ति पूजक था. Nowhere. बाइबल में ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि वो अमीर आदमी झूठा था या लोगों को टोपी पहनाता था या गलत वे में पैसा कमा. Nowhere in the Bible. Nowhere in the Bible it's written that the rich man, he was into sexual immorality. वो व्यभिचार में था या व्यभिचार के कार्य कर रहा था या कुछ गलत काम कर रहा था. Nowhere, not even once. एक बार भी ये मेंशन नहीं किया गया है. Then why did the rich man, तो वो rich man वो अधलोक में क्यों गया? जो जगह परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाया है, जो अधलोक या उसके बाद हेल कहते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप है, तो परमेश्वर ने वो जगह नहीं बनाया था. देन व्हाई वो इंसान जब वो मरा, उसने कभी व्यभिचार नहीं किया था, उसने कभी मूर्ति पूजा के काम नहीं किए थे, उसने कभी झूठ नहीं बोला था, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया था. देन व्हाई ही वेंट टू द हेड्स? वो अधलोक में क्यों गया? इनफैक्ट बाइबल सेज दैट, इनफैक्ट बाइबल बताती है, इफ यू सी वर्स 19, अगर आप 19 के वर्स पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है that the rich man was clothed in purple, के rich man was clothed in purple and fine linen and fair कपड़े में वो हमेशा ढका हुआ था. It means he must have a plenty of money. उसके पास बहुत सारे पैसे थे. वो सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था. बाइबल में ये नहीं लिखा गया है कि लाइक वो सुख विलास करके वो एडल्ट्री की जिंदगी जी रहा है या गलत काम कर रहा है या गलत आदत में है. यह किसी में भी कहीं पे भी लिखा नहीं गया है. He was having a plenty of money. उसके पास बहुत पैसे थे. That's why वो हर दिन सुख और विलास की जिंदगी जी रहा था. You may think, आप सोचते होंगे, so you may think that कि God hates the rich person. No. God किसी को भी नफरत नहीं करता है. You may think that the rich person, जो अमीर आदमी है, वो नरक में जाएंगे. No. नहीं. Having money and staying in a good flat, पैसा है, और if you are staying in a good flat or a good bungalow and going to a good restaurant or spending money, is nothing wrong. You may think that God hates the rich person. No, not at all. You may be thinking that God may, maybe the rich person will go to hell. No, it doesn't work. ऐसा नहीं है. There is nothing wrong कि कोई अच्छी जिंदगी जी रहा है. There is nothing wrong. There is nothing wrong कि किसी के पास बड़ा बंगला है या फ्लैट है या कार है या गाड़ी है, बंगला. It's nothing wrong in that. कुछ गलत नहीं है. If you see the Bible about David and King Solomon, अगर आप डेविड और सोलोमन के बारे में देखेंगे, they were the richest king ever. They were one of the most richest king in this world. और बाइबल बताती है कि उनके जैसा राजा कोई भी अभी नहीं है. No one. They used to wear the best of best clothes. सबसे महंगी, सबसे एक्सपेंसिव चीजें वो पहनते थे. They used to live in a mansion. वो राजमहल में रहते थे. They used to have all the expensive thing. उनके पास हर एक कीमती चीज, हर एक एक्सपेंसिव चीज था जो हर एक राजाओं के पास हुआ करता था या होता है. But then why ये अमीर होने के बावजूद भी बाइबल में कहीं पे ये नहीं लिखा गया है कि डेविड और सोलोमन अमीर आदमी थे और वो मरने के बाद वो अधोलोक में गए. नहीं लिखा गया है. Why?
कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि दे वेंट टू हेट्स, वो अधलोक में गए. नो, नोवेयर. इनफैक्ट इट्स मेंशन दैट परमेश्वर दाऊद और डेविड से बहुत प्रेम, दाऊद और सोलोमन से बहुत प्रेम करता था. He used to love a lot. इनफैक्ट एक जगह में लिखा गया है कि परमेश्वर कहता है, खुद कहता है, डेविड मेरे हृदय के करीब है, मेरे दिल के करीब है. परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता था. अगर गॉड लव्स द पुअर एज वेल एज रिच, परमेश्वर अगर गरीब को जितना प्रेम करता है उतना अमीर को प्रेम करता है. अगर परमेश्वर के पास जो आता है परमेश्वर उनको आशीष करता है. अगर ऐसा है देन व्हाई लूक 16 में अगर हम पढ़ेंगे ये अमीर आदमी मरने के बाद वो अधलोक में क्यों गया? व्हाई? My dear friends, I want to tell you, it doesn't matter you are rich or poor. ये फर्क नहीं पड़ता आप अमीर है या गरीब है. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. God loves you a lot. There is no differentiate. परमेश्वर कभी किसी के साथ differentiate नहीं करता है. He loves equally everyone. But today I want to ask, but why this rich man, ये rich आदमी वो क्यों गया? Why? Number one, when God lifts you up, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है and make you richer, जब आपको अमीर बनाता है, then God आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के साथ साथ वो चाहता है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप गरीबों को, आप अनाथ विधवाओं को और आपकी कलीसिया को एंड स्पेशली जो जरूरतमंद है उनके हर एक नीड्स को पूरा करे, उनके हर एक जरूरत को पूरा करे. When God gives you, जब परमेश्वर आपको ऊंचा बढ़ाता है या फाइनेंशियली आपको मदद करता है या आपके कोई बड़े बिजनेस है या whenever आपके पास बहुत पैसे हैं या whatever it is, it means God, परमेश्वर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जरूरतमंद जितने लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अनाथ है, विधवाएं हैं, अपनी कलीसिया, जो लोग नीड्स है, उनकी जरूरतों को आपके द्वारा वो पूरा करे. इट मीन्स परमेश्वर किसी और के प्रार्थना आपके द्वारा पूरा करना चाहता है. परमेश्वर किसी की जरूरत आपके द्वारा पूरा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर खुद आकर किसी का मदद नहीं करता है. परमेश्वर खुद आके नहीं मदद करता है. परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा आपको मदद करता है या परमेश्वर किसी की जरूरत आपके द्वारा पूरा करता है. वो किसी के जरिए, किसी के द्वारा, थ्रू समवन वो मदद करता है. एंड दिस रिच मैन को जब परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दिया, जब वो अमीर आदमी बन गया था, राइट, ही वॉज हैविंग एवरीथिंग, द बेस्ट थिंग, पर उसने गवा दिया. He missed his opportunity. He was having all the good thing. He was having the best clothes. He was having the best food. All the good thing, everything. But he didn't share with anyone. उसके पास सब अच्छी चीज थे. Every good thing था, पर उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया. वो अपने आप में व्यस्त हो गया था. He was so much busy and engrossed in his life कि वो भूल गया था कि जब हमको खुदा देता है या जब हमारे पास पैसे होते हैं या कोई भी चीज होता है, हमें लोगों की मदद करना चाहिए, हमें गरीबों को मदद करना चाहिए, अनाथ विधवाओं को मदद करना चाहिए. That's why परमेश्वर किसी को प्रभु ऊपर लेवल में लेके जाता है. क्योंकि फिलिपियन 2:4 अगर आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है, दूसरे के हित के बारे में भी चिंता करें. You had to think about others. You had to think about the poor. You had to think about the widows, about the orphans. उनके बारे में भी हमें सोचना है, क्योंकि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर आपके द्वारा पूरा करना चाहता है. You are the media. उनकी जरूरतें परमेश्वर आपके द्वारा पूरा करेगा. That's why परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल में लेके जाता है, ताकि आपकी भी स्टैंडर्ड बढ़े और लोगों की भी जरूरत पूरा हो, कलीसिया की जरूरत पूरा हो, गरीबों का जरूरत पूरा हो. We have to think about others. क्योंकि
क्योंकि मत्ती की किताब 25 के 31 में अगर आप देखोगे, when the son of man, जब यीशु मसीह वो सिंहासन में बैठेगा, जब वो when he will sit on the throne, he will say, वो कहेगा, I was hungry, मैं भूखा था पर आपने मुझे खाना खिलाया, मैं thirsty था आपने मुझे पानी पिलाया, I was stranger, मैं stranger था पर आपने मुझे रहने के लिए जगह दिया. The Bible says that assuredly I say, as you did it to one of the least of my brethren, you did it to me. आपने मेरे लिए किया. इसमें जब आप कोई अनाथ के लिए करते हैं, आप खुदावन यीशु मसीह के लिए करते हैं. कोई गरीबों के लिए करते हैं, आप खुदावन यीशु मसीह के लिए करते हैं. जब आप कोई विधवाओं को मदद करते हैं, तो आप यीशु मसीह के लिए करते हैं. That's why परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि प्रभु आपको आशीष देता है, ताकि आपके द्वारा लोगों की जरूरत पूरा हो. And Bible say they will inherit the kingdom of God, prepare for them from the foundation of the world. और वे परमेश्वर के राज्य के अधिकार हो जाएंगे. My dear friends, परमेश्वर ने वो अमीर आदमी को मौका दिया था. He gave the opportunity, but उसने अपने ऊपर पूरा बिजी हो गया. He was so engrossed. वो इंग्रास हो गया अपने में. एवरी डे वो सुख और विलास की जिंदगी जी रहा है, पर उसने कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचा. एवरी डे ही वाज लिविंग अ लैविश लाइफ, बट उसने कभी अनाथ विधवाओं के बारे में नहीं सोचा. बाइबल बताते हैं लाजरस उसके मैंशन के सामने रुका रहता था कि कब वो खाना जो गिरे टेबल के नीचे वो खाए. My dear friends, we have to help the poor. Lazarus गरीब था, but he didn't help him and others. वो उसने लाजरस को ही नहीं, बाकी किसी को भी उसने मदद नहीं किया था. He missed that opportunity. उसने वो opportunity को खो दिया. And number 2 reason, which is very, very important, मैं हमेशा कहता हूं, he didn't repent. उसने पश्चाताप नहीं किया. Because अगर आप verse 30 पढ़ेंगे, उसी के 16 के 30 में पढ़ेंगे, वहां पे वो कह रहा है, Father Abraham. But कोई अगर वो जहां वहां पे जाए, मृत्यु से उठ के अगर वो जाए, तो मेरे भाई लोग रिपेंट करें, मेरे भाई लोग पश्चाताप करें. My dear friend, as I always says that only one thing can save you, that is repentance in Christ Jesus. एक ही चीज आपको अधलोक के टॉर्चर से या अधलोक के प्रॉब्लम से या नरक के अग्निकुंड से बचा सकता है, that is पश्चाताप. जब आप यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपको वो सारी चीजों से बचाता है. It's a bitter truth. ये कड़वा सच है कि फिजिकल और नेचुरल डेथ इज नॉट अ प्रॉब्लम. नेचुरली डेथ होना या फिजिकली वे में नेचुरल डेथ इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट पश्चाताप के बगैर और यीशु मसीह के जाने बगैर अगर किसी का डेथ है, then there is a problem. This is a bitter truth. This is a bitter truth. Without Jesus Christ, no one can reach to the Father who is in heaven. Because there is no other way. कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है. पिता यीशु मसीह के बगैर आप पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं. Because यीशु मसीह को छोड़ कोई और दूसरा रास्ता नहीं है. That's why John 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं. मेरे बगैर पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता है. Without Jesus Christ, you cannot reach the Father. That's why Jesus Christ has to come to this earth. इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम सब आजाद हो जाए. कब? When you repent, जब आप पश्चाताप करें और जब उस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करें. Lord, I repent of my sin. मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं, मुझे माफ कर दे. The day when you say, परमेश्वर का लहू आपके ऊपर आ जाता है, प्रभु अपने लहू से आपको हर एक पापों से छुटकारा देता है, एंड वो आपके लिए एक मार्ग बनाता है ताकि आप वो पिता जो स्वर्ग में है उसके पास पहुंच सके. Amen. My dear friend, it doesn't matter who you are. ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन है.
You may be a rich or a poor person. आप अमीर हो सकते हैं या गरीब हो सकते हैं. You may belongs from a higher class family or low class family or middle class family or whatever it is. कुछ भी हो जाए, you have to accept Lord Jesus Christ as and Savior to reach the Father. अगर आपको वो सारी चीजों से बचना है, then you have to believe in Jesus Christ. Because पश्चाताप के बगैर you cannot reach heaven. Rich man के पास सब कुछ था. He was having everything, every good things. उसके पास the best of best चीजें थी. बाइबल कहती है वो सुख और विलास की जिंदगी जी रहा था. He was having the best. सुख की जिंदगी लोग तभी जीते जब उनके पास सब कुछ होता है. He was having best, and बाइबल बताती है कि वो धूमधाम से every day, it's not once a month, once a week, या once a year, या no, every day. It means उसके पास सब कुछ था, पर एक चीज की कमी थी. That is Christ Jesus. यीशु मसीह. जो यीशु मसीह के बगैर no one can reach the Father. कोई भी उस पिता के पास नहीं पहुंच सकता है. And I want to tell you one more thing. मैं आपको बताना चाहता हूं. I was in the conversation में किसी के साथ बैठा हुआ था और बातें करते करते एक beautiful thought. You may think. बाइबल बताती है कि जो कोई गरीबों को मदद करता है वो पिता के लिए वो पिता को मदद करता है, वो पिता के लिए करता है. जो अनाथों के लिए करता है वो पिता के लिए करता है, right? But you may think, सोचते होंगे कि come on, मैं तो गरीबों को मदद करता हूं, मुझे यीशु मसीह की जानने की जरूरत नहीं है, right? I will go straight to heaven. मैं स्वर्ग में जा सकता हूं. Most of them may think, मैं काफी बिजनेसमैनों को मिलता हूं when I go for a meeting, like big short people, जब मैं उनके साथ मिलता हूं जिनके पास बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनके अंदर में भी कभी कभी ये सवाल आ जाता है, right? But today I want to tell you, मैं हमेशा उनको एक ही चीज बताता हूं, right? Without Jesus Christ, without Christ Jesus, no one can reach the Father. You know why? हम जब गरीबों को मदद करते हैं, आशीष हमें 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना आ जाता है, right? But अनंत काल का जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, you have to repent and you have to believe in Jesus Christ. There is no other way. गरीबों को मदद करके आपको आशीष मिल जाएगी, अनाथ विधवाओं को मदद करके आपको आशीष मिलेगी, पर अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा जब तक आप पश्चाताप ना करें और जब तक आप उस यीशु मसीह को ग्रहण ना करें. There is no other way. Amen. Friends, I want to tell you, I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूं, जब तक हम जिंदा हैं, right, हमें repent करने का मौका है. ये शख्स जो अमीर आदमी था, वो जब गया, वो जो अधलोक में गया जहां पे वो सताया जा रहा था, उसके पास मौका नहीं मिला, उसके पास मौका नहीं था, उसके पास मौका नहीं था. That's why he was saying, पिता वो कोई किसी को भेज ताकि वो जाके मेरे भाइयों को बोले ताकि वो पश्चाताप करे. It means after that there is no way, there is no chance. क्योंकि मुर्दे कभी पश्चाताप नहीं कर सकते हैं. There will be no mercy. You may beg, प्रभु मुझे माफ कर, but नहीं होगा. Then none of them are going to listen to you. कोई भी आपको नहीं सुनेंगे. No clarification. In this life हम clarify करते हैं कि नहीं, but वहां पे कोई clarify नहीं होगा, क्योंकि जीवन की पुस्तक में सब कुछ नाम भी लिखा गया है और एक रिकॉर्डर है, right? वो जो आप जो कर रहे हैं, everything वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपके सामने पूरा आ जाएगा, like a color way में. ब्लैक एंड व्हाइट होगा भी चलेगा, बट कलर वे में नहीं चलेगा. कलर वे में वो आएगा. You will see everything जो आपने किया है. God will show. Come on. अब क्या you cannot give clarification, because तब तक समय चला गया होगा. You have no option. You have no choice. आपके पास choice नहीं होंगे. There will be no option. If you read, अगर verse 24 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, the rich man is telling, have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me.
सेंड लैजरस, लैजरस भी नहीं आ पाया. Why? After death you cannot do anything. After death you cannot do anything. और वहां पे लिखा गया है वो लाजरस को भेज ताकि वो अपने उंगली के सिरे पर पानी को भिगाकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं. On that day he was, उसको प्यास, वो भूख विलास, जो विलास के सुख के विलास की जिंदगी जी रहा था, वहां पे उसको पानी भी नहीं मिला. He was thirsty. No one, कोई भी नहीं है उसको एक बूंद पानी देने के लिए. मे भी जब वो जिंदा था वो कितना पानी वेस्ट किया होगा, राइट? बट उस दिन उसको पानी एक बूंद भी नहीं मिला. नो वाटर. बिकॉज अधलोक में या वो उसके बाद जो नर्क है उसमें देयर इज नो लाइफ. अगर लाइफ भी है तो टॉर्मेंटेड का लाइफ है, सताए जाएंगे. सुख की कोई चीज है ही नहीं. There is no water, not even a water, single drop of water. कोई भी अच्छी चीज वहां पर नहीं है, बिकॉज वहां पे वो अच्छी चीजों को उठा लिया गया है. There is no water, no air, no oxygen. There is no one, कोई भी नहीं है तो कि वो आपको पानी पिला के आपके जीभ को ठंडक दे सके. No one. My dear friends, this is the truth. उसके पास मौका था, बट उसने मौका का, अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले पाया. उसके पास पश्चाताप करने का मौका था, मे बी, क्योंकि यू में से हाउ, उसको कैसे पता चला पश्चाताप के बारे में? मे बी ही वॉज नॉट नोइंग जीसस क्राइस्ट, बट टुडे आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, वो अब्राहम को जानता था. दैट्स व्हाई वो अब्राहम को बोल रहा है. इट मींस ही वॉज नोइंग. वो जानता था. जानने के बावजूद भी वो अपने लाइफस्टाइल, उसने पश्चाताप नहीं किया. वो सही तरीके से जिंदगी नहीं जिया. वो सही तरीके से, he was so much busy in himself, वो अपने आप पर बिजी था. उसके पास पूरा मौका था, गरीबों को मदद करे, अनाथ विधवाओं को मदद करे, राइट? बट उसने नहीं किया. That's why the rich man यहां पे बैक कर रहा है. बट तब तक समय खत्म हो गया था. You may think that who have seen that. Okay, I really love this. More often when I speak about people about heaven and hell, and hates, अधलोक के बारे में जब मैं बात करता हूं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि come on, हमने देखा नहीं है. Why should I believe? Why should I believe? Because most of the atheists, they don't believe in Jesus Christ. वो विश्वास नहीं करते कि खुदा है. You may think that ये सच है कि ये गलत है. Most of the time they say, yes, one God is there. But वो कौन है मुझे नहीं पता. But पता नहीं वो होगा कि भी नहीं. But my dear friend, I want to tell you something. Most of the time people say कि हमने देखा नहीं है, हम क्यों विश्वास करें? आपने एयर को भी नहीं देखा है, but you still believe. आपने हवा को नहीं देखा है, but you still believe. आपने लॉ, ग्रेविटी, माध्याकर्षण शक्ति को नहीं देखा है, but you still believe. The same way heaven and hell is true. स्वर्ग और नरक सच है. And God will never force you. You believe it or not, वो आपके ऊपर है. प्रभु आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा. It's a free will. रिच मैन को प्रभु जबरदस्ती नहीं किया. कम ऑन, तू अपॉर्चुनिटी है, तेरे को मैंने दिया है. यू आर अ रिच गाय, यू हैव एवरीथिंग. कम ऑन, हेल्प द पुअर. कम ऑन, हेल्प दिस. क्योंकि जब कोई गरीबों को मदद करता है वो मेरे लिए करता है. जब ये करता है मेरे, गॉड डिडंट फोर्स हिम. गॉड विल नेवर फोर्स एनीवन. प्रभु किसी को फोर्स नहीं करेगा. इट्स अ फ्री विल. इट्स अ चॉइस. इट्स अ चॉइस. बट ये सच है, आफ्टर द डेथ God is going to meet everyone. परमेश्वर सबको मिलेगा. You will be accountable. बाइबल बताती है once you are died, जब आप मृत्यु के बाद, straight judgment. Straight judgment. My dear friends, this is true. Because everything may fail. हर एक चीज
फेल हो सकता है, मेरी बात, मेरे जुबान से कोई बात निकलता है वो गलत हो सकता है, आप जो सोचते हैं वो गलत हो सकता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी इधर उधर हो सकता है, पर प्रभु का वचन कहता है इसमें जितने सारे चीजें लिखा गया है इट विल नेवर फेल। इस पवित्र शास्त्र, इस वचन में जितने सारे वर्ड लिखे गए हैं इट विल नेवर फेल। सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। ऑन दैट डे यू विल से कम ऑन यस, कि मुझे काफी सारे लोगों ने स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया था, बट आई डिडंट बिलीव। बट कम ऑन, उस दिन आपके पास समय नहीं रहेगा। दिस इज अ बेटर ट्रूथ। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई स्पीक, काफी दफा व्हेन आई स्पीक अबाउट हेल्थ, पीपल डोंट वांट टू हियर, बट ये सच है, ये सच है। इट विल, माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड, ताकि आप उस नरक के अग्निकुंड में ना जाए, आप उस अधलोक में ना जाए। That's why he died. He died. वो मरा ताकि उसके लहू के द्वारा आप बच सके वो सारी चीजों में। Only one thing, one person, one name, एक नाम, एक शख्स से जो आपको बचा सकता है उस अधलोक के ताड़ना से, उस नरक के अग्निकुंड से, उसका नाम है यीशु मसीह। The day when you believe in Jesus Christ, जब आप उस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके हर एक पापों को धो देता है और आपको आजाद कर देता है, हर एक पापों से आजाद कर देता है। एंड बाइबल बताती है आपको अनंत काल का जीवन भी मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, रिच मैन के पास सब अपॉर्चुनिटी था, he had everything, उसके पास सब कुछ था, everything, right? बट उसने कभी विश्वास नहीं किया। नंबर 2, उसने कभी पश्चाताप नहीं किया। अगर वो पश्चाताप करता तो शायद ये दिन नहीं आते। माय डियर फ्रेंड्स, choice is yours. This is your choice today. I want to tell you, it's a free will. You believe it or not, स्वर्ग और नरक है, it is there, right? And एक ही शख्स जो, जैसे I always say, एक ही चीज जो आपको बचा सकता है, that is repentance in Christ Jesus. पश्चाताप जब हम यीशु मसीह में करते हैं। And number 2, which is very 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 important, उसका लहू से हम बच सकते हैं। My dear friend, choice is yours. Choice is yours. Choice आपका है। रिच मैन के पास सब कुछ था, पर एक चीज की कमी थी। अगर वो एक चीज होता तो वो शायद वो अधलोक में नहीं जाता, प्रभु उसको बट वो पुअर मैन के पास कुछ नहीं था। Come on. उसके पास, लाजरस के पास कुछ नहीं था। My dear friends, इस संसार में सब कुछ हासिल करके, सब कुछ जीत के, अगर कोई भी शख्स अगर अपने आत्मा को खो देता है, then there is a loss. It's a great loss. It's a big loss. सबसे बड़ा लॉस है। बिजनेस में 100 करोड़ का लॉस भी चल जाएगा, बट ये लॉस नहीं चलेगा, बिकॉज आफ्टर डेथ, मरने के बाद, देयर इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ और इटर्नल डेथ। 2 चीज है। मरने के बाद 2 चीज है, इटर्नल लाइफ है, नहीं तो इटर्नल डेथ है, राइट? वो आप डिसाइड करेंगे। जब आप यीशु मसीह में ग्रहण करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु आपको वो इटर्नल डेथ से, अनंत काल के मृत्यु से, जहाँ पे वो अमीर आदमी वो भटक रहा था, वो अमीर आदमी उसको तड़पा रहे थे, वहां से आप बच सकते हैं। बट अगर नहीं जानते हैं, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, then it's gone. माय डियर फ्रेंड्स, जब परमेश्वर आपको मौका देता है, जब आपको ऊंचे लेवल में लेके जाता है, जब आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है, प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा अनाथ विधवाओं का मदद हो, आपके द्वारा कलीसिया का मदद हो, आपके द्वारा जो गरीब लोग हैं उनका मदद हो। आमेन। बिकॉज हमें लोगों के बारे में भी सोचना है। Amen, my dear friend, परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। That's why परमेश्वर आज आपके सामने इस वचन को लेकर आया है। That's why यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि जो कोई उसे मानता है, जो कोई ग्रहण करता है, परमेश्वर उसे हर एक चीजों से आजाद करता है। And the best part is like, परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। He has given us the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमें गाइड करे, ताकि वो हमें कन्विक्ट करे, ताकि वो हमें हर एक चीज बताए। और आपके पास पवित्र वचन है। My dear friend, come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आइए। कल कभी नहीं आएगा। You may think, okay, it's fine, मैं कल पश्चाताप करूंगा या कल यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा। No, कल कभी नहीं आएगा। Because 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, we don't know, हमको नहीं पता।
That's why, my dear friend, come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आइए. Repent of your sin. पश्चाताप करिए, उसे ग्रहण करिए. उद्धार करता करो. You know what is the meaning of savior? What is the meaning of उद्धार करता? You know, उद्धार करता मतलब आप एक चीज में फंसे हैं, आप नहीं निकल सकते हैं. आप जितना भी कोशिश करें नहीं निकल सकते हैं, जितना भी पवित्रता से करेंगे नहीं निकल सकते हैं. राइट? बट जब यीशु मसीह आया, इट मीन्स आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो आपको वो सारी चीजों से निकाल सकता है, और उसका नाम है यीशु मसीह. माय डियर फ्रेंड, गॉड ओनली कैन सेव यू. परमेश्वर कैन सेव यू फ्रॉम दिस इटर्नल डेथ, जो अधोलोक से आपको बचा सकता है, जो हेल से बचा सकता है. दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, कम टू जीसस. यीशु मसीह के पास आइए. बिलीव हिम एज इन लॉर्ड गॉड सेवियर. उसको विश्वास करिए, उसको ग्रहण करिए. एक्सेप्ट हिम लॉर्ड एंड आस्क हिम फॉर फॉरगिवनेस. रिपेंटेंस के लिए प्रार्थना करें. रिपेंट कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर. आज से मैं ग्रहण करता हूं. एंड यू विल सी, परमेश्वर आपको हर एक चीजों से आसान कर देगा.